Welcome to Anecdote of the Jar by Wallace Stevens. Explanation Part 2. कविता एनेक्डोट ऑफ द जार जिसके कवि वॉलेस स्टीवंस हैं के व्याख्या के भाग 2 में आपका स्वागत है. First of all, let us see the text of the poem. आइए पहले कविता की मूल पंक्तियां देखते हैं. I placed a jar in Tennessee and round it was upon a hill. It made the slovenly wilderness surround that hill. The wilderness rose up to it and sprawled around, no longer wild. The jar was round upon the ground and tall and of a port in air. It took dominion everywhere. The jar was grey and bare. It did not give off bird or bush like nothing else in Tennessee. Coming to the explanation of the poem, part 2, we see the poem contains a number of particularly mysterious lines which are not very clear in their meaning at the first reading. Now let us come to the explanation part 2, which is in continuation of the explanation which we were discussing in the previous video. अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 देख चुके हैं. उसी की निरंतरता में ये एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है. We see that the poem contains a number of particularly mysterious lines which are not very clear in their meaning at the first reading. When we read the poem for the first time, we find that there are certain things which are not at all clear, and we do not understand what is the relevance or what is the reference of those words or meanings or whatever expression he has used. जब हम कविता को पहली बार पढ़ते हैं तो हमें कई शब्द, कई अभिव्यक्तियां, कई भाव समझ में नहीं आते हैं कि इनका अर्थ क्या है, ये क्यों लिखे गए हैं, या हम इसको समझने में क्या फेल हो रहे हैं, या हम समझने में अक्षम हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा गया है. सो दिस इज द नेचर ऑफ द पोएम. इन वन लाइन we are told that the jar did not give off bird or bush. In one of the lines, it has been mentioned that the jar did not give off bird or bush. It is guessed that this simply means that the jar is an inanimate or non-living object. So, it does not care for the living world of nature that surrounds it. Now, critics have done some guesswork about this. एक पंक्ति में ये कहा गया है, the jar did not give off bird or bush. इस पर अनुमान लगाए गए हैं, इस पर कयास लगाए गए हैं. और वो guesses क्या हैं? It is guessed that this simply means that the jar is an inanimate or non-living object. What critics
or interpreters or scholars have come to conclude about this line. इस शब्दावली या इस वाक्यांश के प्रति स्कॉलर्स ने या आलोचकों ने या समीक्षकों ने जो समझा है वो ये है कि द जार इज इनएनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. यहां कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जार एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अजीव है, निर्जीव है. और ऐसी चीज जो निर्जीव है, सो इट डज नॉट केयर फॉर द लिविंग वर्ल्ड ऑफ नेचर दैट सराउंड्स इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट डज नॉट केयर फॉर द लिविंग नेचर विच इज अराउंड इट. इसीलिए क्योंकि खुद निर्जीव है, खुद जीवन विहीन है, इसलिए ये अपने आसपास की प्रकृति की तरफ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है. क्योंकि खुद जीवन विहीन है तो इसे जीवित प्रकृति के से किसी भी तरह का सरोकार नहीं है. और that the jar brings nothing forward, contributes nothing to the natural world, unlike the bird and the bush. And another interpretation that comes before us is, एक और व्याख्या जो आलोचकों ने समीक्षकों ने की है वो ये है, और that the jar brings nothing forward. Critics and scholars say that one interpretation can be that the jar brings nothing forward. It does not yield nothing, it does not produce anything, it does not give us anything. जार हमें कुछ भी देता नहीं है. It does not bring, it brings nothing forward, contributes nothing to the natural world, unlike the bird and the bush. It does not contribute anything like the bird and the bush. The way the bird, being an animal, contributes to nature. The bush, being vegetation, contributes to nature. यहाँ पर बर्ड, चिड़िया, पक्षी होने के कारण कुछ प्रकृति को देती है या प्रकृति से उसका सरोकार होता है. बुश वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसका प्रकृति से सरोकार होता है, संबंध होता है. बट द जार हैज नो रिलेशन विद नेचर, सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट. लेकिन जार का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है प्रकृति से, इसलिए यह प्रकृति को कुछ भी नहीं देता है. We take nature in the form of food and process it, selling it on in jars. And of course, America is the birthplace of consumer capitalism. Here, one more interpretation is that we take nature in the form of food and process it. When we consume food and process food, we are actually taking something or borrowing something from nature. हमारा प्रकृति से जो रिश्ता है, संबंध है, वो क्या है कि हम इससे भोजन लेते हैं और उस भोजन को या तो हम सीधे खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, या हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एक प्रक्रिया के तहत डेवलप करके फिर खाते हैं, जिसको हम कुकिंग कहते हैं, पकाना कहते हैं. या हम भोजन को सीधे कच्चा ग्रहण करते हैं या हम उसको प्रोसेस करके पका करके खाते हैं. Selling it on in jars. And another thing is that we sell certain foods after processing them in jars. और कुछ खाद्य वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम उनको जार्स में बेचते हैं, पात्रों में बेचते हैं, बरनी में बेचते हैं, तो मर्तबान में बेचते हैं. तो इस तरह से जार्स का हम प्रयोग करते हैं प्रकृति से चीज लेकर के, प्रोसेस करके और फिर उसको बेचने में. एंड ऑफ कोर्स अमेरिका इज द बर्थ प्लेस ऑफ कंज्यूमर कैपिटलिज्म. And America is the birthplace. America is the first place on the globe which gave rise to consumer capitalism. और अमेरिका तो वो जगह है जहां पर कंज्यूमर, उपभोक्ता से संबंधित कैपिटलिज्म का
उद्गम हुआ था। इसलिए जार का अमेरिका की कैपिटलिज्म से भी बहुत गहरा संबंध है। A jar is, among other things, a symbol of this. So here, some critics have said that the jar is symbolical of the capitalist idea. The capitalist, when industrial revolution came, then capitalism came, and people, they started becoming materialistic. So it was this type of transformation which came for the first time from America. हमने ये देखा है कि औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद पूंजीवाद आया और उसके बाद लोगों के अंदर उपभोक्तावाद आया, या कंज्यूम करने का जो रुझान था, प्रकृति थी, वो बहुत तेजी से बढ़ी। और इस चीज का सबसे पहला जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो अमेरिका में मिलता है। इसलिए जार इज अ सिंबल ऑफ दिस। सो सम क्रिटिक्स से that the jar is symbolical of this consumer capitalism. ये इसका संकेत है, ये इसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है कि जब हम सांकेतिक भाषा में बात करते हैं तो ये जार हमें एक संकेत के रूप में या एक प्रकृति चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में मिलता है। यहाँ प्रतीकात्मकता है जार के अंदर कि वो यहाँ के कैपिटलिज्म या कंज्यूमर कैपिटलिज्म को की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। We might also understand anecdote of the jar more widely as a poem about man's victory over nature. Some critics have said that the jar is man's victory over nature. It draws our attention to this direction. When we study the explanation of the poem, we find that this interpretation of the poem is also valid when we see it in this respect. जब हम कविता के एक्सप्लेनेशन को इस संदर्भ में देखते हैं तो हमें कहीं कहीं ये संदर्भ भी बिल्कुल सही लगता है, ये व्याख्या भी बिल्कुल सही लगती है। और वो व्याख्या क्या है? Anecdote of the jar is more widely a poem about man's victory over nature. मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और ये जार प्रतीक है उस विक्ट्री का। ये एनेक्डोट ऑफ द जार के माध्यम से जो वृत्तांत हमारे सामने रखा गया है, ये मनुष्य की प्रकृति पर विजय का ही वृत्तांत है। Note how the placing of the jar on top of the hill means that the wasteland or wilderness along with the natural world has to grow around the jar. Here, critics and scholars have interpreted this fact that the jar was kept at a neglected or abandoned spot. But even in that wasteland, even in that wilderness, the whatever vegetation existed, it grew around that jar. यहाँ व्याख्याकारों ने, आलोचकों ने या साहित्यकारों ने ये व्याख्या की है जो बहुत सही लगती है कि जार जहां रखा गया था वहां तो निर्जनता थी, कोई भी सजीवता नहीं थी, स्लोवननेस थी। और जब जार रखा गया तो वहां के स्थानीय वनस्पति को उस जार के चारों तरफ उगने का रुझान पैदा हुआ। Note how the placing of the jar on top of the hill means that the wasteland or wilderness along with the natural world has to grow around the jar. इस कंज्यूमर कैपिटलिज्म के इर्द गिर्द मनुष्य को अपनी बनाई हुई उपभोक्ता वाली संस्कृति के इर्द गिर्द नेचर का आना
बहुत नेचुरली देखने को मिलेगा। प्रकृति को अपने आप को इस पूंजीवाद या उपभोक्तावाद के चारों तरफ रखना ही पड़ेगा, इस पर आश्रित होना ही पड़ेगा। इन द एंड नेचर लूजेस इट्स वाइल्डनेस एंड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमरिज्म नेचर लूजेस इट्स वाइल्डनेस। जब मनुष्य के संपर्क में या उपभोक्तावाद के संपर्क में या पूंजीवाद के संपर्क में प्रकृति आती है, तो ये अपनी वाइल्डनेस को, ये अपने जंगलीपन को, ये अपनी उस प्रकृति को जो कि, ये अपने उस रुझान को जो कि इसको जंगल के साथ जोड़ करके रखता है, ये उसको खो देता है और उससे अलग हो जाता है। और इसका रुझान या इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो बनावट है, वो मनुष्य के प्रति या मनुष्य के खुद के रुझान या उसकी आवश्यकताओं के प्रति, उसके कंज्यूमरिज्म के प्रति झुकता दिखाई देता है। द जार सीम्स टू इन्फ्लुएंस एवरीथिंग अराउंड इट and the jar seems to influence everything around it, and it is very important that the jar influences everything around it. It means consumerism, capitalism affects everything around it. जार सब अपने आसपास के सारे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। अर्थात अगर हम इसको प्रतीक मान लें जार को, तो उपभोक्तावाद या पूंजीवाद ये अपने आसपास हर चीज को प्रभावित कर रहे हैं, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, हर सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। जो हमारी मशीनरी है, जिसके थ्रू हम रन करते हैं सोसाइटी को, इकोनॉमी को, ये उन सबको प्रभावित कर रहा है। तो अगर जार को हमने प्रतीक माना है, तो हमने ये भी देखा है कि हमारे हर तरह का रुझान, हमारी मानसिकता, हमारी मनोवैज्ञानिकता, हमारी आवश्यकताएं, ये सब के सब उस उपभोक्तावाद या पूंजीवाद के इर्द गिर्द चले जाते हैं। एंड रिमूव्स द वेरी वाइल्डनेस दैट मेक्स द नेचुरल वर्ल्ड व्हाट इट इज। एंड वी आर रॉन्ग इन थिंकिंग दैट नेचर इज वाइल्ड, एंड बाय कनेक्टिंग नेचर विद कंज्यूमरिज्म वी हैव हेल्प्ड नेचर टू बिकम आवर फ्रेंड। हमने उपभोक्तावाद या पूंजीवाद के साथ जब प्रकृति को जोड़ा है, तो प्रकृति हमारे लिए जंगली नहीं रही है, बल्कि प्रकृति हमारे लिए ज्यादा फ्रेंडली हो गई है, प्रकृति हमारे लिए ज्यादा अपनी हो गई है। द रेपिटेशन ऑफ राउंड वर्ड्स, राउंड, सराउंड, अराउंड, राउंड, ग्राउंड, emphasize not only the round shape of the jar, but also the difference between man-made jar and the wilderness of nature and of America that surrounds it and sprawls around it. The repetition of words. We have seen that round words are repeated with some prefixes. Round, surround, around, ground, all these the round word has prefixes attached to it. यहां पर ये जो राउंड शब्द है, मूल शब्द, इसके पहले उपसर्ग, इसके सामने हमने इसके शब्द लगाए हैं, और उनके कारण ये इन शब्दों का बहुत महत्व बढ़ गया है। Emphasize not only the round shape of the jar, it does not emphasize only the shape of the jar. राउंड का अर्थ गोल से तक सीमित नहीं रखा गया है, जार का जो गोल आकार है उस तक सीमित नहीं रखा गया है, बट ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड जार एंड विल्डरनेस ऑफ नेचर। मैन मेड जार राउंड है, विल्डरनेस ऑफ नेचर राउंड है, एंड ऑल द विल्डरनेस ऑफ नेचर हैज टू सराउंड द मैन मेड सिचुएशंस। यहां पर इस गोलाकार में एक और बात जो हमें दिखाई देती है, वो ये है कि मनुष्य जो भी बनाएगा, प्रकृति अपने आप ही उसके इर्द गिर्द अपने आप को स्थापित कर लेगी। एंड ऑफ अमेरिका दैट सराउंड्स इट एंड स्प्रॉल्स अराउंड इट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन इज दैट अमेरिका सराउंड्स इटसेल्फ अराउंड सच थिंग्स। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी, अमेरिका के पूरे साइकोलॉजी,
अमेरिका की पूरी भौतिकतावाद, अमेरिका के पूरी उपभोक्तावाद, ये सब के सब जार के अराउंड जैसे वेजिटेशन उगा है, इसी तरह से यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ अमेरिका के लोगों का रुझान भी हो गया है। तो यहाँ जो कंज्यूमरिज्म है या यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट आया है, उस सब ने नेचर को भी अपने साथ सम्मिलित कर लिया है और नेचर को अपने चारों तरफ कवच बना करके ये साथ में लेकर के चल रहा है। और फिर अमेरिका तो बहुत जल्दी कैपिटलिज्म या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ गया। अमेरिका ने तो बहुत जल्दी आर्थिक संघर्ष करके अपने आप को स्थापित किया। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि जार को प्रतीक मानते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रगति अमेरिका में हुई है, विशेष रूप से आर्थिक प्रगति, वो आर्थिक उत्थान जो हुआ है अमेरिका का, वो इसको प्रतीक मान करके देखें तो सही लगता है। दिस इज व्हाट वॉलेस सेज इन द पोएम एनेक्डोट ऑफ द जार। एनेक्डोट ऑफ द जार में कवि ने हमें यही सारी बातें बताने का प्रयास किया है और अलग अलग व्याख्याओं में जितनी भी व्याख्याएं की गई हैं वो सारी हमें सही लगती हैं। लेट अस सी द एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो एक्सप्लेनेशन भाग 2 के लिए कुछ आवश्यक शब्द और वाक्यांश हैं, वो हम देख लेते हैं। विल्डरनेस, अ प्लेस दैट पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ और कंट्रोल। लोगों की उपेक्षा का कारण उजाड़ पड़ गया इलाका, घास फूस और झाड़ झंकार भरा इलाका। डोमिनियन, द पावर टू रूल एंड कंट्रोल, शासनाधिकार, प्रभुसत्ता। स्प्रॉल, टू कवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बड़े भूक्षेत्र में फैल जाना। ग्रे, हैविंग द कलर बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद के रंग वाला। स्लेटी, राख जैसे रंग वाला। द जार हैज बीन शोन एज इफ इट इज मेड ऑफ ग्रे कलर। सो वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम Anecdote of the Jar in 2 parts or 2 videos. Kindly see both the videos. And the short poem has many interpretations, so kindly see all the interpretations because all of them seem to be correct. यहाँ हमने कविता Anecdote of the Jar का explanation, व्याख्या या इसका विस्तारीकरण देखा है 2 भागों में। दोनों वीडियोस देखिए और इसमें जितनी व्याख्याएं बताई गई हैं वो सब सही लगती हैं, इसलिए सारी व्याख्याओं को आप ध्यान से देखें और पढ़ें, दोनों वीडियोस को देखें। थैंक यू, धन्यवाद।